السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ہر صبح کا پہلا قدم صحت کی طرف۔ فاطمہ شرازیز باڈی رائٹ ہربل ویٹ مینجمنٹ ڈرنک، بیلنس بی لائٹ 100% ہربل۔ شروعات کیجئے ہیلدی لائف سٹائل کی باڈی رائٹ کے ساتھ۔ لاکھوں لوگوں کا بھروسہ، باڈی رائٹ بی لائٹ دا ہربل وے۔ کانٹیکٹ 8142877400 اور 7729058167۔ پلر نمبر 213 گولڈن ہائٹس کالونی، راجندر نگر، حیدرآباد۔ فارمولا ای کار کے کیس میں سابق وزیر اور بھارت راشٹر سمیتی کے کارگزار صدر KTR کے خلاف کارروائی کی اجازت گورنر جشنو دیو ورما نے دی۔ یہ بات سب کو معلوم ہے۔ اس پر KTR نے ردعمل ظاہر کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ قانون اپنا کام خود کرے گا۔ انہوں نے کہا اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے۔ مجھے گرفتار کرنے کی ہمت حکومت نہیں کرے گی۔ فارمولا ای کار کیس میں کوئی غلطی نہیں کی، یہ بات میں 100 مرتبہ کہہ چکا ہوں۔ لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کے لیے بھی تیار ہوں۔ ریاست میں کانگریس اور BJP کی مشترکہ وینچر حکومت چل رہی ہے۔ ملک میں اس طرح کا غیر قانونی اتحاد کہیں اور نہیں ہے۔ پارٹی بدلنے والے MLAs پر نااہلی کی تلوار لٹکے تو ان کی بدنامی ہوگی، اس لیے انہیں استعفی دینے کا موقع دیا جا رہا۔ دانم ناگیندر سے استعفی دلوایا جا رہا۔ انہوں نے ہمارے لوگوں سے کہا کہ دانم ناگیندر سے استعفی دلوائیں۔ تکنیکی بہانے بنا کر کڈیم سری ہری کو شاید بچانے کی کوشش کی جا رہی۔ KTR نے مزید کہا میں جب 10 سال وزیر تھا تو زمینوں کے لیے بہت لوگ آئے، پیسے دینے کو بھی تیار تھے، پھر بھی ہم نے زمینوں کی تبدیلی کے لیے کبھی رضامندی ظاہر نہیں کی۔ لیکن آج ریونت ریڈی کی حکومت نے بڑے زمین گھوٹالے کی شروعات کی ہے، کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تلنگانہ کی باکسر نکھت زرین کو عالمی باکسنگ کپ فائنل میں 51 کلو گرام کی کیٹیگری میں سونے کا تمغہ جیتنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا نکھت زرین نے گریٹر نوئیڈا میں منعقدہ عالمی باکسنگ کپ فائنلز میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس فتح نے نہ صرف ملک بلکہ عالمی سطح پر تلنگانہ کی شاندار پہچان قائم کی۔ چیف منسٹر نے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے نکھت زرین کی اس کامیابی کو ایک مثال اور تحریک قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں وہ مزید اعلیٰ کامیابیاں حاصل کریں گی اور نئے ریکارڈ قائم کریں گی۔ واضح ہے کہ تلنگانہ حکومت نے نکھت زرین کو گزشتہ سال ہی محکمہ پولیس میں DSP کی ملازمت فراہم کی ہے۔ بیجاپور قومی شاہراہ پر مرزا گڑا کے قریب پیش آنے والے بھیانک سڑک حادثے میں 2 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ دونوں گاڑیوں میں سوار کئی افراد شدید زخمی ہو گئے۔ کنکاما میڈی گیٹ کے پاس یلو ڈھابا کے سامنے پیش آئے اس حادثے نے مقامی سطح پر ایک بار پھر غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق صبح تانڈور کے علاقے سے ایک ڈاکٹر 3 افراد کے ساتھ کار میں حیدرآباد آ رہے تھے۔ اسی دوران 4 فوٹوگرافر اور ایک ویڈیوگرافر ایک کیب میں پروگرام کی شوٹنگ کے لیے چیولڈا روانہ ہو رہے تھے۔ یلو ڈھابے کے قریب دونوں گاڑیاں آمنے سامنے خوفناک انداز میں ٹکرا گئیں۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ کیب ڈرائیور موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ ایک اور زخمی شخص دوران علاج اسپتال میں جان بر نہ ہو سکا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا۔ حکام کے مطابق 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ حادثے کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے پولیس تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہے۔ جوبلی ہلز کے MLA نوین یادو میئر کے کیمپ آفس پہنچے اور GHMC میئر گدوال وجے لکشمی اور تلنگانہ ریاستی حکومت کے مشیر کیشو راؤ سے ملاقات کی۔ بعد ازاں GHMC میئر گدوال وجے لکشمی نے MLA نوین یادو کو مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ماہی گیروں کے عالمی دن کے موقع پر اس پیشے سے روزی کمانے والے گنگا پتر بیستاس گنڈلوں اور مدیراجوں کو دلی مبارکباد پیش کی گئی۔ وزیر پونم پربھاکر نے انہیں مبارکباد پیش کی اور کہا کہ عوامی حکومت ماہی گیروں کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے، جو ملک کی معیشت اور غذائی تحفظ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس پیشے کی حفاظت اور فشز کی تقسیم کے ذریعے غریبوں کو کھانا فراہم کرنا اور فشز کے بچوں کے ذریعے سب سے خواہش کرتے ہیں جو اس پیشے پر انحصار کرتے ہیں اپنے پیشے کو برقرار رکھتے ہوئے معاشی طور پر ترقی کریں۔ ماہی گیروں کے عالمی دن کی بہت بہت مبارکباد۔ سب کو نیک خواہشات اور اقتصادی ترقی حاصل کرنے کی خواہش کی گئی۔
तेलंगाना पीसीसी के सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने बॉक्सर निखत जरीन को दिली मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने एक बार फिर आलमी सतह पर तेलंगाना का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा है कि ग्रेटर नोएडा में मुनक़िदा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कप 2025 में गोल्ड मेडल जीतना रियासत के लिए बड़े फख्र की बात है। उन्होंने कहा है कि इसकी खेलों की उम्दगी, नज़्म ज़ब्त और सख्त मेहनत ने एक बार फिर कौम के लिए शानदार फतेह हासिल की। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि वो मुस्तक़बिल में भी मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में मज़ीद तमग़े जीतती रहे और मुल्क और रियासत दोनों का वक़ार मजीद बुलंद करती रहे। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत खिलाड़ियों की तरक्की के लिए भरपूर ताउन जारी रखेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने हिंदुस्तान के दौरे पर आए हुए बांग्लादेश के कौमी सलामती के मुशीर खलीलुर रहमान के साथ दोनों ममालिक के सलामती के मंजरनामे पर तफसील से तबादला ख्याल किया। खलीलुर रहमान 7वीं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हिंदुस्तान आए। कॉन्फ्रेंस के अलावा अजीत डोभाल और खलीलुर रहमान के दरमियान सलामती से मुत्तलिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने दो तरफा और इलाकाई सलामती को मुतासर करने वाले मुतअद्दिद अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खुफिया मालूमात के तबादले, सरहदी इंतजाम और दहशतगर्दी, मंशियात की स्मगलिंग और सरहद पार जुराइम से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों को मजबूत करने के अज़्म की तौसीक़ की। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जनूबी अफ्रीका में जारी G20 सरबराही इजलास में शिरकत पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया। अपनी तफसीली पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि वजीर आजम मोदी का ये दौरा इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि अमेरिका और इसके सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस इजलास का बाइकॉट करने का फैसला किया है। जयराम रमेश के मुताबिक इस गैर मामूली सूरत हाल ने वजीर आजम को बगैर किसी सियासी दबाव के जनूबी अफ्रीका पहुंचने का मौका फराहम किया। जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में इस वाक़े का भी हवाला दिया जब चंद रोज पहले वज़ीर आज़म मोदी ने कुआलालंपुर में होने वाले हिंदुस्तान आसियान इजलास में शिरकत से गुरेज किया था। जयराम रमेश ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आज़म ने इस इजलास में इसलिए शिरकत नहीं की क्योंकि वहां सदर ट्रंप की मौजूदगी से उनका सामना होने का इम्कान था। इनके मुताबिक जिस मुलाकात का सामना करना हो इससे बचने के लिए रास्ता बदला जाता है। दिल्ली और एनसीआर में जहरीली हवा ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा। सर्दी में इजाफा और हवा की रफ्तार में नुमाया कमी के बाइस आलूदगी की शिद्दत रोज बरोज बढ़ रही। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद समेत पूरा खित्ता गहरे स्मोक की तह में डूबा हुआ नजर आया। सूरत हाल इस कदर खराब है कि ग्रेपफ्रूट जैसे सख्त इक़दामात भी नुमाया असर दिखाने में नाकाम रहे और शहरी बदस्तूर खतरनाक आलूदा फिजा में सांस लेने पर मजबूर हैं। गाजियाबाद मुल्क का सबसे ज्यादा आलूदा शहर रहा, जबकि दिल्ली के कई मुकामी स्टेशनों पर AQI 600 के पार पहुंच गया। आनंद विहार में ये सतह 620, जहांगीरपुरी में 583 और बहादुरगढ़ में 550 रिकॉर्ड की गई। इसी तरह लोनी, रोहनी और नोएडा सेक्टर 116 भी मुसलसल खतरनाक जुमरे में बरकरार हैं। हालांकि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के मुताबिक दिल्ली के बड़े स्टेशनों पर 24 घंटों का औसत AQI तकरीबन 400 के आसपास रहा, मगर कई रियल टाइम रीडिंग्स और इससे कहीं ज्यादा बिगड़ी हुई सूरत हाल दिखाई रही। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल 8वें दिन औसतन AQI 391 रिकॉर्ड हुआ, जो बहुत खराब कैटेगरी में आता है। इससे कबल ये 392, उससे कबल 374 और उससे कबल 351 रहा। वजारत अर्जियाती उलूम के एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने भी खबरदार किया कि आइंदा दिनों में दिल्ली की फिजा मजीद खराब हो सकती है। मुकामी स्टॉक मार्केटों में इब्तदाई कारोबार में कमी देखी गई। सेंसेक्स 285.28 पॉइंट्स लुढ़क कर 85,347.40 पॉइंट्स पर खुला और खबर पड़ने तक ये 238.47 पॉइंट्स यानी कि 0.28% गिरकर 85,394 पॉइंट्स पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स भी 26,109.55 पॉइंट्स पर खुलने के बाद 82.60 पॉइंट्स गिर गए और तादम तकरीबन 99.30 पॉइंट्स की कमी से 26,102.85 पॉइंट्स पर था। धात, रियलिटी और मालियाती सेक्टर के हिस्सों में जबरदस्त फरोख्त हुई। ऑटो और IT स्टॉक्स में तेजी रही। सेंसेक्स कंपनियों में ICICI बैंक, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस के हिस्से सुर्ख निशान में थे, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा के हिस्से तेज थे।
भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने रील के जरिए की मंगनी की तस्दीक। भारतीय विमेन क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने आखिरकार अपनी मंगनी की तस्दीक कर दी। उन्होंने ये ऐलान एक दिलचस्प इंस्टाग्राम रील के जरिए किया, जिसमें उनकी क्रिकेट टीम की खिलाड़ियां भी नजर आईं। वीडियो में साथी खिलाड़ी स्मृति से उनके रिश्ते से मुतल्लिक अफवाहों पर मज़ाहिया अंदाज में सवाल करती हैं, जिस पर स्मृति मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, समझो हो ही गया, जो उनकी मंगनी की वाज़ेह तस्दीक समझी जा रही। सोशल मीडिया पर फैंस, क्रिकेटर्स और शोबिज शख्सियात की जानिब से दोनों को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी। स्मृति और मारूफ मौसीक़ार पालाश मचल के दरमियान गुज़िश्ता कुछ अरसे से रिश्ते की खबरें गर्दिश में थी। ज़राए के मुताबिक जोड़ा जल्द ही बाज़ाब्ता ऐलान भी कर सकता है। नेपाल के सिमारा शहर में जनरेशन जेड जेन जी के पुरअमन एहतजाज के दौरान अचानक भड़के तशद्दुद ने हालात को शदीद कशीदा बना दिया, जिसके बाद मुकामी इंतजामिया ने इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। नेपाली मीडिया के मुताबिक जनरेशन जेड के नौजवान रात तकरीबन 10 बजे एहतजाज के लिए जमा हुए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद CPN-UML के कारकुनों के साथ उनकी तल्ख कलामी झड़प में बदल गई और माहौल पुरतशद्दुद हो गया। इतलात के मुताबिक CPN-UML से वाबस्ता यूथ एसोसिएशन ने 12 के परवानीपुर में एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था, जिसमें पार्टी के मरकजी रहनुमा शंकर पोखरल और महेश बसंत समेत दीगर लीडरान की आमद मुतवक्के थी। इसी दौरान जनरेशन जेड के नौजवान पुरअमन एहतजाज के लिए जमा हुए, मगर दोनों ग्रुपों के आमने सामने आते ही सूरत हाल अचानक बिगड़ गई। जितपू सिमारा सब मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर राजन पोडेल ने नेपाली मीडिया को बताया कि जनरेशन जेड के नुमाइंदे सम्राट उपाध्याय और उनके साथी एहतजाज की क़ियादत कर रहे थे। मेयर के मुताबिक नौजवान पुरअमन तौर पर जमा हुए थे, लेकिन तशद्दुद भड़क गया, जिसके नतीजे में कई लोग जख्मी हुए। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस मौके पर मौजूद थी, मगर झड़प को फौरी तौर पर रोकने में नाकाम रहे। तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने मरकज के इस फैसले पर सख्त मायूसी का इजहार किया, जिसके तहत रियासत की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया कि धान की खरीदारी के दौरान काबिल कबूल नमी की हद में वक्ती नरमी दी जाए। रियासत ने पे दर पे बारिशों के बाद ये दरख्वास्त की थी, ताकि वो किसान जन की फसल कटाई के फौरन बाद बारिश में भीग गई है माली नुकसान से बच सकें। वज़ीर आला स्टालिन ने वाज़ेह किया है कि भारी बारिशों ने रियासत के कई अजला में धान की फसल को शदीद नुकसान पहुंचाया। किसान न सिर्फ अपनी फसलें बचाने में नाकाम रहे, बल्कि बारिश के सबब कटी हुई फसल में नमी की मकदार भी गैर मामूली हद तक बढ़ गई। ऐसी सूरत में उनके मुताबिक असूल में मामूली नरमी न सिर्फ मंतकी थी, बल्कि किसानों की बका के लिए नागुज़ीर भी थी। रियासत ने मरकज से दरख्वास्त की थी कि मौजूदा नमी की हद 17% से बढ़ाकर 22% कर दी जाए, जैसा कि माजी में भी गैर मामूली बारिश के दौरान किया जा चुका है। स्टालिन ने कहा, मरकज ने अपने पहले ऐसे मौके पर अमली सूरत हाल को समझते हुए रियासत की बात मानी थी, इसलिए इस बार इनकार समझ से बालातर है। उन्होंने कहा है कि जब मरकजी हुकूमत पहले इसी तरह के हालात में नरमी दे चुकी, तो अब किसानों की यही जायज दरख्वास्त क्यों नामंजूर की जा रही। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం చేతబడి చేయబడిన వారు
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। मा फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।